Hi everyone, let's continue our discussion on the next topic, which is rise of British supremacy in India. There are two subsections in this. The first one is your Carnatic Wars and the second is on the Battle of Plassey and Buxar. Now please do watch the earlier video of the forward and the backward linkages, which will help you to understand the chronology and the story, how it is unfolding. And in case the videos are really relevant to your preparation, please do like, comment, share and subscribe. Okay, moving ahead with this topic. Firstly, we have seen that all the other European powers like Portuguese, Dutch, Danes, they were eliminated. And the two powers that were left were British and French. अब इन दोनों में से how did the British rise to supremacy is the question to be understood. Now, if we just see the background of what was happening, so firstly, if we talk about the early 18th century time, so the East India Company of both English and France, they were settled here and they were having the profitable trade. They came here for the trading purpose, they were doing it well. But in the other parts of the world, they already were rivals. English and France as a power, they were already as rivals in Europe and North America also. Now, if two dominant powers or two countries, let's say, will be rivals in some other part of the world, their rivalry will be reflected in the case of India also. So that was of course happening. So that resulted in Anglo-French rivalry in India during the time of 1740s. Now what happened during the time of mid 18th century? There was gradual transformation seen of English East India Company from a trading company to a political power. They had come here for the trading purpose. We have talked about it. But they started to acquire the territories and started to have that control, and they started to transform themselves into a political power. And now they were also very clear that they were adamant rather that they would be the supreme power here and they would not have any other competitor. So they started to eliminate the other powers also. And also we have noticed during this period of time the expansion of trade network in India, either with the help of diplomacy or war, that's a different thing. So the powers were already emerging, and then what happened between these two powers, वो हम अभी यहाँ समझेंगे. Now before we proceed, of course, because हम Carnatic region पे focus कर रहे हैं, Carnatic wars की बात कर रहे हैं, so you should be very particular about the Carnatic region. So I hope you are able to see this here. ये है आपका Carnatic region, ठीक है, यहाँ Carnatic लिखा हुआ है. So roughly this region आप समझ पाओगे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं. Now let's understand कि how did these two powers started to have their struggle for supremacy, जिसको हम बोलते हैं Carnatic Wars. Okay, so firstly, what was the interest of the European companies in India, or what it was related to, वो हम पहले समझने की कोशिश करते हैं. So firstly, एक तो यहाँ पे दिख रहा था कि there was declining Mughal authority. So these European powers or companies were already understanding that politically the situation in India was not good, because the Mughal authority, which was the prominent power then, was already declining. And to replace the Mughal authority, there was no regional power as such which could have replaced, because they were very weak regional powers. ठीक है, जो भी states emerge हुए थे. Military empowerment was not there with these people, and also they thought that they could have gone for the maximization of profits here, because these European companies, I mean the European countries, were also militarily empowered, but these people were not militarily empowered, so they had that privilege. Also they could easily see that with the help of trade etc they could do the maximization of profit for them. But for maximization of profit, what did they need? They needed to eliminate the competition, and therefore you would see Portuguese, Dutch, Danes, all these powers got eliminated, because it was understood कि आपको जितने भी competition हैं आपके internal और external, you will have to eliminate them in order to be supreme by your own self. And they also understood that they will have to establish monopoly over the trade. Monopoly means only one power having the control. So they understood कि हमें बाकी को eliminate करके खुद का जो वर्चस्व है यहाँ पर स्थापित करना होगा. For all of these things to happen, अब एक चीज़ क्या चल रही थी कि they were buying the commodities cheaper from here, सस्ते में सामान खरीद के they were selling it costly. ठीक है, ये ट्रेड में चल रहा था. अब इसके होने के वजह से, because of this happening, and of course that was giving them profit monetarily, what was happening, they started to acquire some political control also over the trading country, क्योंकि उनको समझ में आने लगा that if they will have the political control, let's say if this is the territory and you are just having trade here and you are getting good profit, but
if you will start having the political control over these territories, you will have more opportunity for economic gain also and then political power also. Anyways that will happen. तो ये सब इन लोगों को समझ में आने लगा. Then what happened? एंग्लो फ्रेंच राइवलरी हुई, यानी ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में जो है वो राइवलरी होने लगी. अब इस केस में क्या होने लग रहा था? द रीज़न वॉज दैट वाई दिस सदर्न रीजन वॉज चूजन, यू नो वाई ये सदर्न एरिया में ज़्यादा हो रहा था. तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या था कि फ्रांस का जो मेन सेंटर है वो तो सदर्न की तरफ ही था, वो तो हमने शुरू से भी देखा हुआ है, ठीक है. एंड द कैपिटल वॉज पॉन्डिचेरी. ये वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. And also they were having very much influence in Hyderabad and Mysore. Mysore में तो in fact we have talked about like you know Hyder Ali and Tipu Sultan, that they were taking French help also. So French की काफ़ी ज़्यादा dominance और you would say a prominence जो है वो दिख रहा था in the southern India. Now in western India you had another regional power, a prominent power, Marathas. Eastern India में Bengal region में अलीवर्दी खान was the नवाब then. तो अब इन सब टाइम पर क्या होने लगा कि इन डिफरेंट रीजन्स एक सदर्न एस्पेक्ट में ब्रिटिश को जो है वो फ़ायदा दिखा कि ये जो एक्सटर्नल पावर है इनको हम एलिमिनेट करें, बिकॉज ये सब तो इंटरनल पावर्स हैं. दिस वॉज द एक्सटर्नल पावर. सो फर्स्टली दे वुड ट्राई टू एलिमिनेट द एक्सटर्नल पावर, ठीक है. सो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1740 to 1763 इज़ वॉट वी नो एज कार्नाटिक वॉर्स. अब इसको हम डिफरेंट उसमें समझेंगे दैट फर्स्ट कार्नाटिक, सेकेंड में क्या हुआ. So first Carnatic War was fought between 1740 to 48. Now here what was happening? What was the background for the first Carnatic War? In 1740, in Europe, there was something going on. Austrian War of Succession. Now Austria, which is a country in Europe, वहाँ War of Succession चल रहा था कि कौन उसको overtake करेगा. Of course Austria और Prussia were involved in that. खैर हमें we don't, because this is a part of your world history. So in our syllabus for the time being this is not that concern. The concern here to understand is कि because that Austrian War of Succession was going on over there was some issue that would have reflected in the case of India only, because जब भी कोई ऐसी लड़ाई होती है वर्ल्ड में, what happens, it's not that only one country versus another country is involved. There are camps associated. So if like A and B are involved, there will be many other powers who will support A, many other powers will support B. So they will have groupings or camps associated. तो on that point of time what was happening, opposite camps में थे आपके फ्रेंच और ब्रिटिश. ये दोनों उस वॉर ऑफ सक्सेशन में भी ऑपोजिट थे एक दूसरे के. तो of course that would have been reflected in the case of India. So now what happened, there was this person Dupleix, इसका नाम आपको याद रखना होगा, Dupleix, who was the French governor. Now what Dupleix did was to advise the British कि इंडिया में, मतलब फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया, हर कंट्री वॉज हैविंग देयर ओन गवर्नर ऑल्सो ना इंडिया में, कि उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी को टेक केयर कौन करेगा, हाउ वुड द थिंग्स बी मैनेज्ड. सो दे वर हैविंग, so who was the French governor in India during the time of Carnatic Wars? Dupleix. And such kind of questions can be asked in your prelims also. Now he advised British power कि इंडिया में ना एक काम करते हैं, लेट्स मेंटेन न्यूट्रलिटी. आई मीन वट एवर इज हैपनिंग इन यूरोप, लेट्स नॉट हैव द इम्पैक्ट इन इंडिया एंड लेट्स मेंटेन न्यूट्रलिटी. बट British was not ready for this and British seized some of the French ships. जो सदर्न ईस्टर्न कोस्ट पर कुछ फ्रांस के जो शिप्स थे उनको ब्रिटिश ने सीज कर लिया. अब सीज कर लिया तो फ्रेंच गवर्नर को किसी से तो हेल्प लेनी पड़ेगी, बिकॉज दे विल नॉट जस्ट बी सिटिंग लाइक दिस एंड लेटिंग थिंग्स हैपन टू देमसेल्व्स. So what Dupleix did, Dupleix took help from the French governor of Mauritius, because these East India companies or these European powers, they were in the process of colonization also, that they will come to you know the countries in the east and they will start acquiring these places. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही आ रहे थे, हम तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बट they were there in the nearby regions also. तो मॉरिशियस में क्या हो रहा था, मॉरिशियस में भी there was one French governor जिसका नाम था ला बूडवानिस. I might pronounce these names wrong because these are French names and I don't know this, but I think that would be somehow okay while we try to understand this. So Dupleix took help from the French governor of Mauritius, La Boudouanis. अब with the help of this French governor, Dupleix ने क्या किया, इंग्लिश को अटैक करा और जो ब्रिटिश पोजेशंस थे इन दी फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये आपने अभी देखा है, यू हैव सॉल्व दिस इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो, जो फोर्ट बना था मद्रास में, वहाँ पर जो भी ब्रिटिश पोजेशंस थे उसको कैप्चर कर लिया. Now when French attacked or let's say protected themselves or let's say defended themselves and attacked English, so English also had to seek some help. So English
सीक द प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्नाटिक नवाब, जो कार्नाटिक रीजन के नवाब थे, हुज नेम वाज अनवरुद्दीन, उससे मदद मांगी. अब अनवरुद्दीन ने क्या किया, अनवरुद्दीन सेड दैट, फ्रांस को इन्होंने बोला दैट यू प्लीज क्विट मद्रास, यू डोंट स्टे हियर, ठीक है. लेकिन फ्रांस डिड नॉट अग्री. वाई विल फ्रांस अग्री? when the French governor asked British to maintain neutrality, they did not agree. So if some power who is helping English now will ask French कि भाई अब मद्रास को छोड़ दो, तो why will they agree? That is pretty obvious they will not agree. तो the large army of Anwaruddin just got defeated by the French army. तो English को भी कोई मदद नहीं हो पाई. अब और क्या होने लगा, because Dupleix was known for his capable you would say rather केपेबल टैलेंट आई वुड से, या फिर जो कैपेबिलिटीज़ थी उसकी, जिस तरीके से ही वॉज मैनेजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो लेटर फेज में क्या होने लगा, सीइंग द डुप्ले रोल इन दिस पर्टिकुलर फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, मेनी ऑफ द इंडियन रूलर्स ऑल्सो आस्क्ड हिम फॉर हेल्प. दे अंडरस्टूड कि इस इंसान में कुछ तो बात है एंड वी कैन आस्क हिम फॉर हेल्प. ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड ओवर फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, that it was this person Dupleix who first intervened in the disputes of Indian rulers and got the political control. जो चीज़ हम ब्रिटिश के लिए देखते हैं ना कि वो इंटरनल रीजनल पावर्स के साथ इन्वॉल्व होने लग गए एंड देन द ब्रिटिश टुक कंट्रोल ओवर अस, एक्चुअली ब्रिटिश ने कॉपी करा फ्रांस से. So it was this person Dupleix who had actually started to use these Indian rulers for the advantage, ठीक है. लेकिन ब्रिटिश ने इसी टेक्निक को बाद में अपने लिए यूज़ किया. So this is what happened in the case of first Carnatic war. अब क्या हो गया, यूरोप में the war of succession that was going on, ठीक है, so that ended and that resulted in a treaty. Mostly the wars used to end in a treaty. Treaty is, you can say, like kind of an agreement wherein both the parties would agree for something or the other. So the war of succession ended and this treaty of Aix-la-Chapelle was signed in 1748 on mutual terms. मतलब दोनों की सहमति से ये चीज़ जो है वो साइन हुई. बिकॉज वॉर ऑफ सक्सेशन एंडेड देयर, सो ऑफकोर्स इट हैड इट्स इन्फ्लुएंस इन इंडिया ऑल्सो, विच रिजल्टेड इन द एंड ऑफ फर्स्ट कार्नाटिक वॉर इन इंडिया ऑल्सो. तो मद्रास वॉज रीस्टोर्ड टू इंग्लिश. यहाँ जो इन्होंने मद्रास जो है ब्रिटिश पोजिशंस को कैप्चर कर लिया था फ्रांस ने, तो दे रीस्टोर्ड इट टू इंग्लिश एंड फ्रांस को भी उसकी एक टेरिटरी जो थी लुईबर्ग नॉर्थ अमेरिका की, जो इंग्लिश ने उनसे कैप्चर कर लिया था, वो वापस मिल गया. तो म्यूचुअल टर्म्स पे इन्होंने कर दिया कि हम आपको एक टेरिटरी दे देंगे, यू गिव अस वन ऑफ आवर टेरिटरी. और इस ट्रीटी से ये वॉर ऑफ सक्सेशन भी खत्म हो गया एंड फर्स्ट कार्नाटिक वॉर इन इंडिया ऑल्सो एंडेड. ठीक है, यहाँ तक तो ओके है. नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, सेकेंड कार्नाटिक वॉर. अब सेकेंड में क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या था, फर्स्ट का बैकग्राउंड क्या था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन. सेकेंड का बैकग्राउंड क्या था, यहाँ पे क्या होने लगा, बिटवीन कार्नाटिक एंड हैदराबाद रीजन. अभी आपको मैप में दिखाया है, कार्नाटिक ये है और हैदराबाद आपका ये है, सो इट्स प्रिटी लाइक नियर बाई. सो बिटवीन दीज टू रीजन्स यहाँ पे क्या होने लगा ना, इन दोनों जगह पर सक्सेशन डिस्प्यूट्स हो रहे थे. नाउ व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ दीज, लाइक ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है सेल्फ रीड, आप बुक में देखोगे, यू विल गेट इट, एनी बुक यू टेक अप यू विल गेट इट. द रीज़न इज़ कि इट इज़ जस्ट अबाउट दोज फैक्चुअल नेम्स कि कौन किसके पार्टी में था, कौन किसके साथ लड़ रहा था. सो देर इज़ नथिंग एज सच टू बी टॉट अबाउट इट. सो कॉम्प्लीमेंट ऑल ऑफ योर नोट्स हिस्ट्री के स्पेशली विथ योर बुक रीडिंग. Now because internal issues were going on, succession disputes were going on, Dupleix got the opportunity to intervene in the Indian politics. हमने यहाँ पे देखा है that Dupleix has used this technique of getting indulged in the Indian politics. So what he did, he intervened in the Indian politics. अब यहाँ पे क्या होने लगा कि English then got problem कि अब Dupleix जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है और इसमें से कोई भी पार्टी को अपने साइड कर लेगा, तो हाउ विल द इंग्लिश सस्टेन, बिकॉज दे वर सीइंग दैट द फ्रेंच इज बिकमिंग अ मेजर प्रॉब्लम फॉर देम. सो दे यूज द सजेशन ऑफ देयर क्लर्क. सो देयर वॉज दिस यंग क्लर्क ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. His name was Robert Clive. Very important name. You will come across this name time and again in the further classes also. So remember, who was Robert Clive? The young clerk of East India Company, but very important person. So he had given some suggestion and English used his suggestion. English ने इनके suggestion के use किया जो, तो उससे क्या हो गया, France got defeated. हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है किसने क्या बोला, ठीक है, just know the overall crux of what was happening. अब फ्रांस गॉट डिफीटेड तो क्या हुआ, यहाँ पे जो फ्रेंच गवर्नर जनरल थे या फिर गवर्नर थे Dupleix, फ्रांस की सरकार ने सोचा कि भाई इसको हटाओ, दिस पर्सन इज़ नॉट डूइंग इनफ इन इंडिया बिकॉज इसकी वजह से हम डिफीट हो गए हैं. सो 1754 में देयर वाज दिस अनदर पर्सन हु गॉट सक्सीडेड एज द फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. हिज नेम वाज गोडेयू.
ठीक है. सो डुप्ले अब हट गए और नेक्स्ट पर्सन वाज कोटेलियो. ही हैड टू साइन पीस ट्रीटी विद ब्रिटिश कि भाई शांत से रहते हैं, चलो आपस में समझौता कर लेते हैं, शांति जो है वो बना करके रखते हैं. एंड व्हाट वाज दिस पीस ट्रीटी ऑल अबाउट? इट वाज अबाउट नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द प्रिंस, कि जो भी इंटरनल अफेयर्स यहाँ के प्रिंसेस के रहेंगे, चाहे वो इन रीजन्स का हो या कहीं का भी हो, बट वी विल नॉट इंटरफेयर. कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा. लेट देम डू देयर वर्क, लेट अस डू आवर वर्क. ठीक है. बट ओवरऑल इफ़ यू टॉक अबाउट दिस, हम बोलेंगे कि कहीं ना कहीं एक इनकन्क्लूसिव तरीके से सिचुएशन रही डिस्पाइट ऑफ दिस पीस ट्रीटी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. बहुत ज़्यादा देयर वाज नो प्रोमिनेंस सीन, या फिर बहुत ज़्यादा यू वुड से कि नो रिजल्ट सीन, एंड द इंग्लिश इन्फ्लुएंस स्टार्टेड टू इंक्रीज. बिकॉज ऑफ दिस क्या होने लगा, अच्छा इनका एक कैंडिडेट था. जब आप ये डिटेल पढ़ोगे, वेन एवर यू विल स्टडी अबाउट दिस, यू विल अंडरस्टैंड अबाउट these people belonging to different region, and you will come across this person मोहम्मद अली, who was the नवाब ऑफ कर्नाटक. वो इन्हीं का कैंडिडेट था एंड इन्फ्लुएंस जो है वो इनका बढ़ रहा था. सो ओवरऑल हम बोलेंगे कि सेकेंड कर्नाटिक वॉर में, क्योंकि एक पीस ट्रीटी साइन हो गई तो बहुत ज़्यादा कुछ कंक्लूजन नहीं निकला ना कि इंग्लिश विल सस्टेन एज अ पावर और फ्रांस विल सस्टेन एज अ पावर. यहाँ पे भी क्या हो गया था, दोनों म्यूचुअल टर्म्स पे एंड हो गए थे. यहाँ पे भी पीस ट्रीटी साइन हो गई तो इनकन्क्लूसिव हो गया. Although English का influence was increasing, please be very particular about what we have written here, because this is what will help you develop that story. That there was no conclusion derived from the Second Carnatic War that British will sustain or France will sustain. अभी तक this answer we have not got, but what we noticed that English influence has increased. ठीक है. एंड देयर कैंडिडेट दिस पर्सन मोहम्मद अली वॉज द नवाब ऑफ कर्नाटक. तो इस रीजन में इन्हीं का जो एक कैंडिडेट था वही नवाब था. तो इस वजह से क्या हो रहा था, हमें दिख रहा है कि डिस्पाइट ऑफ अ क्लियर पिक्चर ऑफ इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच, वी सी द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश राइजिंग और इंक्रीजिंग. ओके, देन व्हाट हैपेंड इन द थर्ड कर्नाटिक वॉर. अच्छा, इसका भी फिर एक बैकग्राउंड होगा. सो 1756 में व्हाट हैपेंड, यूरोप में देयर वाज अनदर वॉर दैट हैपेंड, दैट वाज नोन एज 7 years वॉर. ठीक है. अब उस 7 years वॉर में भी ब्रिटिश एंड फ्रेंच वर इन ऑपोजिट कैंप्स, तो फिर उसका इम्पैक्ट वॉज गोइंग टू बी सीन इन इंडिया. देन व्हाट हैपेंड, फ्रांस सेंट आर्मी टू इंडिया, और उसको लीड किसने किया, हु वाज द हेड, काउंट डी लैली. 1758 में फ्रांस सेंट आर्मी टू इंडिया. नाउ दिस आर्मी व्हेन केम टू इंडिया हैड टू फेस सर्टेन प्रॉब्लम्स. Firstly, they were not as such having any naval support at that point of time. There was shortage of arms and ammunitions. Then lack of funds was there. There was distrust between this head of the army and his soldiers. Now this is very important for the coordination, but there were issues between them. So the army had to face multiple problems, and somehow what happened in the further time that Lally got defeated at Battle of Wandiwash. ठीक है, तमिलनाडु रीजन में 1760 में क्या हुआ, एक बैटल हुआ वांडीवॉश. एंड आपको दिख ही रहा है कि आर्मी को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, फ्रेंच आर्मी को. सो दे गॉट डिफीटेड. अब दे गॉट डिफीटेड, सो देयर मस्ट हैव बीन सम पर्सन हु वुड बी हेडिंग इंग्लिश आर्मी ऑल्सो, एंड हु वाज दैट, जनरल आयरे कूट. ये सारे नाम आपको याद रखने होंगे. ठीक है. अब इंग्लिश आर्मी को ये लीड कर रहे थे, फ्रेंच आर्मी को ये लीड कर रहे थे, बट दे गॉट डिफीटेड. बिकॉज दे गॉट डिफीटेड, इनसे कुछ तो छिना जाएगा. Because mutual terms में what happens when you mutually sign a treaty that both of the parties agree कि हमको ये दे दो और हमसे ये ले लो, बट यहाँ पे जो हार रहा होता है उसका बहुत कुछ छिन जाता है. So when they got defeated, पौंडीचेरी जो इनका मेजर कंट्रोल रीजन था, ठीक है, इनको सरेंडर करना पड़ा. तो 1761 में they had to surrender पौंडीचेरी. और फिर क्या हुआ, 1763 में पीस ऑफ पेरिस साइन किया गया एट द एंड ऑफ 7 year वॉर. जब ये 7 year वॉर ख़त्म हुआ तो पीस ऑफ पेरिस साइन किया गया एंड ऑफिशियल एंड दिखा. ऑफिशियल एंड में क्या हुआ कि पौंडीचेरी एंड सम अदर सेटलमेंट्स जो है वो फ्रांस को इन्होंने, क्योंकि पीस ट्रीटी साइन की थी, तो फ्रांस को वापस ज़रूर कर दिया. बट इट वॉज ऑल्सो सेड दैट यू विल नॉट बी अलाउड टू फोर्टिफाई, मतलब आप किलेबंदी नहीं कर सकते, किला नहीं बना के घेरा नहीं लगाओगे किसी पर्टिकुलर रीजन पे, विच मीन्स यू विल नॉट हैव द सुप्रीम कंट्रोल ओवर दैट रीजन. यू जस्ट यूज दोज प्लेसेज एज द ट्रेडिंग पोर्ट्स, कि आपकी शिप आ रही है और यहाँ से शिप आपकी जा रही है, जस्ट फॉर दैट पर्पस यू यूज, यू विल नॉट फोर्टिफाई. सो इट वॉज क्लियरली एविडेंट दैट नाउ इंग्लिश वॉज ऑन अ हायर साइड, एंड थर्ड कर्नाटिक वॉर क्लियर्ड वे फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. फ्रांस जस्ट रिमेन मियरली एज अ पावर ऑफ ट्रेडिंग, और धीरे धीरे फिर वो भी एलिमिनेट होते चले गए. लेकिन अब जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन या फिर फर्दर कंटिन्यूएशन की बात है, दैट बिकेम वेरी क्लियर दैट विच पावर इज हैविंग अपर हैंड, इंग्लिश. ठीक है. सो दिस इज़ वन मेजर थिंग जहाँ कर्नाटिक वॉर से वी गेट द क्लियरेंस दैट ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच में किसकी सुप्रीमेसी हो रही है.
So we will quickly, just for the mains perspective, see a couple of reasons for the defeat of France against English, because this is what they can ask you in the question. First, the continental ambitions of France. Now see how the two different companies, both European only, had different mindset and different perspective. इंग्लिश वॉज ओनली फोकसिंग ऑन द कोलोनियल एक्सपेंशन, कि ये जो भी हम दूसरे जगह जा रहे हैं, हम इनको अपनी कॉलोनीज बना लेंगे, ये छोटे रीजन्स हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे. सो द इंग्लिश वॉज ओनली फोकसिंग ऑन द कोलोनियल एक्सपेंशन. वॉट वॉज द फ्रांस डूइंग? दे हैड द कॉन्टिनेंटल एम्बिशंस. बेसिकली दे वॉन्टेड टू एक्सपैंड द कॉन्टिनेंट, यूरोप को ही और एक्सपैंड करके इसमें सब कुछ लाना चाहते थे, विच ऑफकोर्स लेड टू अ वास्ट इम्पैक्ट ऑन द रिसोर्सेज, बिकॉज इसमें रिसोर्सेज बहुत ड्रेन हो रहा था. ब्रिटिश का सिर्फ कितना था, बस हमें कॉलोनीज अपनी ज़्यादा बनानी है, इनको पूरे कॉन्टिनेंट में खुद को फैलाना था और बाकी सबको भी उसी में लाना था, फर्स्टली. देन सेकेंडली, देयर वर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग इन फ्रांस एंड ब्रिटेन. फ्रांस में देयर वाज ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक जो है अपना तानाशाही चला के चल रहा था, और करप्शन, देयर वाज सो मच ऑफ करप्शन. ब्रिटिश में देयर वाज ऑलिगार्की. ऑलिगार्की मीन्स द पावर लाइज इन ग्रुप ऑफ पीपल एंड नॉट वन पीपल. So when there is power lying in group of people, that is called as oligarchy. Of course that's थोड़ा सा better than autocratic, because यहाँ पर तो एक की तानाशाही चल रही होती है. एंड ऑल्सो ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप था. तो करप्शन है यहाँ पर, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यहाँ ऑलिगार्की है या कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है, तो ऑफकोर्स दिस सीम्स स्लाइटली बेटर. ऑल्सो द वे दीज टू कंपनीज, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, द वे दीज वर ऑर्गेनाइज्ड, देयर वाज सो मच ऑफ डिफरेंस इन देम. फ्रेंच कंपनी को जो कैपिटल की बात करते हैं, तो यहाँ पे मेजर कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू दिस कंपनी वाज कमिंग फ्रॉम द मोनार्क, जो राजा था उससे ही कैपिटल मिलता था फ्रेंच कंपनी को. ब्रिटिश के केस में व्हाट वाज द केस? दे वर इंडिपेंडेंट कमर्शियल कॉरपोरेशन. When this East India Company, British wali, was formed in 1599 and they got the exclusive trading privilege in 1600 by the Queen of Britain, it was said that you are an independent commercial corporation. आपको हमने इधर से परमिशन दे दिया, अब आप आराम से अपना फंड रेजिंग जो भी जैसे करना है काम करो. तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस वॉज देयर इन रनिंग ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी. ब्रिटेन में देयर वॉज नो गवर्नमेंट्स इन्फ्लुएंस, इनिशियली तो नहीं, ठीक है. देन इफ यू टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डुप्ले, we have talked about him. He was the initial person from French side. Now he also had more focus on the political conquest. His attention was not on the poor finances and the trading aspects. ठीक है, बहुत सारी उसकी भी लूप होल थे. उसके अलावा जो ब्रिटिश ने बंगाल रीजन में सक्सेस किया था, अभी वी विल टॉक मोर ऑन दिस, बट ब्रिटिश ने बंगाल रीजन में काफ़ी सक्सेस कर लिया था. सो ऑफकोर्स दे वर pretty confident about, when they had succeeded in one region, they were pretty confident about that we could use, you know, those resources in the third Carnatic War also. क्योंकि आप देखो थर्ड कार्नाटिक वॉर का टाइम क्या है, 1757 से 63. नाउ दिस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ द टाइम इन बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट. ठीक है, प्लासी बंगाल रीजन में, अभी जब हम पढ़ेंगे ना तो अभी हम उस पर बात करेंगे अगले चैप्टर में. तो वहाँ से उनको जो फ़ायदा मिल रहा था उन्होंने अपने थर्ड कार्नाटिक वॉर में यूज़ किया. एंड थर्ड कार्नाटिक वॉर वॉज द वन विच वॉज एक्चुअली डिसाइसिव, क्योंकि सेकेंड वॉज इनकन्क्लूसिव, फर्स्ट में भी म्यूचुअल टर्म्स पे सब मैनेज हो गया था. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग उस टाइम का सिग्निफिकेंस क्या है. देन सम अदर फैक्टर्स लाइक डुप्ले वॉज रिकॉल्ड मतलब डुप्ले को वापस बुला लिया था ना. हमने देखा दैट द नेक्स्ट पर्सन जो है गोडेयू, ही सक्सीडेड डुप्ले, तो उसको वापस बुला लिया. जो काउंट डी लैली, जो ये पर्सन था, वॉज हेडिंग द फ्रेंच आर्मी, ही वॉज वेरी एरोगेंट एंड नॉट हैविंग गुड टर्म्स विद द सोल्जर्स ऑल्सो. एंड एब्सेंस ऑफ परमानेंट नेवल प्रेजेंस in India, they were not having the permanent naval presence. So these are so many factors. If you have to write like a proper answer to it, you can try and attempt the mains question type also. अपने से बना के you can just have कि what was the reason for the defeat of France against English, especially in the Carnatic Wars. तो इंग्लिश की भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कुछ तो सुपीरियरिटी रही होगी, that they could succeed, and they proved out to be a very superior force. So they had strong and superior navy, they were wealthier also, superior infrastructure था, large fleets, जो war ships होते हैं वो थे उनके पास, frequent voyages करते थे, you know, सी रूट डिस्कवरी के बाद multiple वो करते थे, वो रूट ट्रैवल करते थे. कॉमर्स का they had very superior knowledge, and of course that was a private corporation. हमने देखा independent commercial corporation, private corporation, there was no state dependency, especially for the finances, there was no interference by the government initially. And some regions in Bengal, for example Chandarnagar region Bengal में, and you know other eastern regions, they proved no match for Calcutta.
सॉरी चंदरनगौर और ईस्टर्न रीजन जो आपके फ्रांस के कंट्रोल में थे इन द बंगाल रीजन, दे वर नॉट ऑफ मैच विथ रिस्पेक्ट टू कैलकाटा विच वॉज अंडर ब्रिटिश. तो इवन इन ईस्टर्न साइड फ्रांस ने जो थोड़ा बहुत कोशिश करी थी टू गेट होल्ड, दैट हैड नॉट मच कंट्रोल, बट ब्रिटिश के अंडर में वट एवर रीजन्स वर देयर, दे हैड इमेंस इंपॉर्टेंस देन. So therefore we can in short say that there was qualitative differences between these two companies. Quantity में कि number किसका ज़्यादा था, soldiers किसके ज़्यादा थे, that is a different thing. But here the way it was organized, the way it was functioning, the motive they had, the qualitative difference existed between these two companies. And therefore what we notice that finally the English rose to supremacy. So I hope you have got clearance about the first aspect of the topic. How did the British rise to supremacy? By eliminating that last यूरोपियन पावर ऑल्सो. पोर्टुगीज डच डेन्स तो पहले ही हट चुके हैं, हमने पिछले क्लास में देख लिया. अब बचा हुआ फ्रांस भी ख़त्म हो गया. तो नाउ एज अ यूरोपियन पावर और एज एन एक्सटर्नल पावर इट वॉज ओनली इंग्लिश दैट सस्टेन्ड हियर. So I hope this chapter should have been, this topic should have been clear to you. Please I really request, please read your book also. जो भी ये हम relevant topic कर रहे हैं ना, बुक से चूज़ करके जहाँ जहाँ पे ये टॉपिक्स हैं इनिशियली में, आप वहाँ से सिलेक्टिवली उठाइए और जितना हम कवर करते हैं उसको अपने बुक से कवर करिए. वट एवर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू आर गेटिंग, एड डाउन इन योर नोट्स. द रीज़न इज दैट एवरीथिंग यू, आई कैन नॉट कॉपी पेस्ट द बुक टू यू. I will just be giving you the gist and making you understand क्योंकि these are the relevant portions. History आपको ऐसे ही prepare करना होगा because there are so many facts to be done. And of course in between I'll have the revision sessions so that things become clear to you. And the PYQs तो खैर that will continuously go on for both prelims and mains. So see you guys in the next class. Thank you so much till then. Bye bye.